حدبندی کمیشن نے جموں صوبے کے لیے 6 سیٹیں بڑھانے اور کشمیر صوبے کے لیے 1 سیٹ بڑھانے کی سفارشات کو کمیشن کے ممبران کے پاس رکھا۔ 9 سیٹیں شیڈول ٹرائب اور 7 سیٹیں شیڈول کاسٹ رکھنے کی تجویز۔ نیشنل کانفرنس سمیت دیگر پارٹی ممبران نے میٹنگ میں لیا حصہ۔ وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کیا ٹویٹ، کہا نیشنل کانفرنس سمیت تمام ممبران نے تجویز پر اطمینان کا کیا اظہار۔ حدبندی کمیشن کے بارے میں ہمارے خدشات قطعاً غلط نہیں تھے۔ مردم شماری کو نظر انداز کر کے ایک خطے کو 6 اور دوسرے کو 1 سیٹ بڑھانے کی سفارشات غلط ہے۔ یہ ایک خطے کو دوسرے خطے سے لڑانے کا سخت منصوبہ ہے۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا بیان۔ حدبندی کمیشن کی سفارشات پر عمر عبداللہ، غلام نبی آزاد، الطاف بخاری، سجاد غنی لون سمیت کئی لیڈران نے کیا اپنے بیان جاری۔ نیشنل کانفرنس کی شرکت پر پیپلز کانفرنس نے اٹھائے سوال، کہا یہ فیصلہ یک طرفہ ہے۔ نیشنل کانفرنس کے بائیکاٹ پر پہلے بائیکاٹ پھر دوبارہ حصہ لینے پر الطاف بخاری نے کیا اپنا بیان جاری۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ سراسر غلط ہے۔ اروند کیجریوال کی پارٹی کے نمائندے ڈاکٹر نواب کے مطابق فیصلہ نیشنل کانفرنس کی شرکت سے اور شک میں تبدیل ہوا۔ اور ٹھٹھرتی سردی کے باوجود محکمہ بجلی کی ممکنہ نجی کاری فیصلے اور عارضی ملازمین کے مستقلی کو لے کر جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں پی ڈی ڈی ملازمین نے کیا احتجاج۔ کئی میٹنگیں سرکار کے ساتھ دوپہر تک چلی لیکن بے معنی اور بے نتیجہ ختم ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، گراؤنڈ رپورٹ کے سبھی ناظرین تک سری نگر اسٹوڈیو سے اپنے میزبان ترجمہ اسلام کا سلام پہنچے۔ ناظرین، شروعات کرتے ہیں جموں کشمیر سے ابھی تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ۔ ناظرین، ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا تقریباً 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر دی گئی تھی، کیونکہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے اپنی رپورٹ 1 سال میں مکمل کرنی تھی۔ تاہم فروری میں جو اجلاس منعقد ہوا اس میں نیشنل کانفرنس نے بائیکاٹ کر کے اس اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ آپ کو یاد دلا دوں، ریٹائرڈ جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی کی قیادت میں ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے ان دنوں اسمبلی اور پارلیمنٹ سیٹوں کی نئی حد بندی پر غور کر رہا ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ دیگر پارٹیوں نے اب کی بار اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ حد بندی کمیشن نے یوں جموں صوبے کے لیے ممکنہ 6 سیٹیں بڑھانے کا ڈرافٹ پیش کیا، جبکہ کشمیر صوبے کے لیے واحد سیٹ بڑھ سکتی ہے۔ کمیٹی نے ممکنہ 9 سیٹوں میں سے شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ سیٹوں کے لیے وقف رکھا گیا ہے۔ کمیٹی نے مسودہ قانون کمیٹی کے ممبران کے سامنے رکھا۔ 9 سیٹیں شیڈول ٹرائب، 7 سیٹیں شیڈول کاسٹ کے لیے شاید بڑھا دی جا سکتی ہے۔ نیشنل کانفرنس نے پہلی بار اس اجلاس میں شرکت کی۔ نئی دلی کے اشوک ہوٹل میں اس میٹنگ میں ممکنہ خاکہ پیش کیا گیا، جس میں 6 سیٹیں جموں صوبے اور 1 سیٹ کشمیر صوبے کے لیے اسمبلی سیٹوں میں بڑھانے کا بھی اندیہ ظاہر کیا گیا، جبکہ ممکنہ ڈرافٹ میں سے 43 سیٹیں اب جموں اور 47 سیٹیں کشمیر صوبے کے لیے ہو سکتی ہے۔ کمیشن کے مستقل ممبران کو 31 دسمبر تک تجاویز جمع کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس بیچ نیشنل کانفرنس نے اس اجلاس میں شرکت کرنے کے بعد کہا یہ فیصلہ یک طرفہ ہے، جبکہ اجلاس میں موجودہ وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ٹویٹ جاری کرتے ہوئے کہا، نیشنل کانفرنس سمیت کم و بیش تمام معزز ممبران نے ڈیلیمیٹیشن کی میٹنگ میں خوش و خرم حصہ لیا اور بدفراق رائے دیکھا اور ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی کافی تعریف کی، تائید کی، جنہوں نے تمام نظریات کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ سنایا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ممبرز جو ہیں، جن میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ، جسٹس حسنین مسعودی، محمد اکبر لون موجود رہے، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر سرکار میں سابق وزیر اعلیٰ رہ چکے غلام نبی آزاد نے آج ڈوڈا میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران انہوں نے خطہ پیر پنچال
और वादी चनाब को इस डिलिमिटेशन कमीशन में ज्यादा हिस्सा न मिलने पर जबरदस्त हैरानगी और ताज्जुब का इजहार किया। इस इजलास में सियासी तकरीर करने के बाद हमारे नुमाइंदे वसीम गत्तू के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा, डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर रुकबे के लिहाज से फैसला सुनाया तब भी गलत है, अगर सियासी नजरियात की बुनियाद पर सुनाया तब भी गलत है। उन्होंने कहा, ताहम हम नाउमीद नहीं है, आगे इन फैसलों पर हमारी कोशिश और एतराज जारी रहेगा। आज के इजलास में अब्दुल मजीद वानी, साबिक वजीर, GM सरूरी समेत कांग्रेस पार्टी के बेशतर लीडरान गुलाम नबी आजाद के दाएं और बाएं में नजर आए। लेकिन नेगेटिव बदलाव हुआ, पॉजिटिव बदलाव नहीं हुआ। नेगेटिव बदलाव ये क्या हुआ कि मिलिटेंसी फिर बढ़ गई है। नेगेटिव बदलाव ये हुआ था इंडस्ट्रियाँ नई आने वाली तो कोई आई नहीं, लेकिन पुरानी 70% बंद हो गई। नेगेटिव बदलाव ये हुआ कि जिनको जो ज़मीन थी तो उससे वंचित किया गया, उनसे महरूम किया जा रहा है, ये नेगेटिव चीज़ है। एडहॉक अपॉइंटमेंट्स थी, उनको निकाल दिया गया है। जो कई सरकारी मुलाजम हैं जो 30-30 साल से 25-25 साल से नौकरी कर रहे हैं, घर वालों को पाल रहे हैं, उनको डेडवुड के नाम पे सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाए, तो ये नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। पॉजिटिव एक चीज़ भी नहीं है। पॉजिटिव एक चीज़, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, 45 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है। तो आप देखें कि कोई खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, ठेकेदार खुश नहीं है, मेट खुश नहीं है, उनको काम नहीं लगा, मेसन को काम नहीं मिल रहा है, कारपेंटर को काम नहीं मिल रहा है, मजदूर को यहाँ से बाकी राज्यों में जाना पड़ता है काम करने के लिए। और पहले वक्त में, हमारे वक्त में तो जब डबल शिफ्ट काम होता था, ट्रिपल शिफ्ट काम होता था, तो यहाँ के 100% लोगों को मजदूरी मिलती ना। मुझे उम्मीद है कि ये जो 6 सीटें दी, क्योंकि इसके 2 बुनियादी क्राइटेरियाज होते हैं, पॉपुलेशन और गुलाम नबी आजाद ने हमारे नुमाइंदे के साथ मजीद बातचीत के दौरान डिलिमिटेशन कमीशन पर अपना तासुर जाहिर करते हुए कहा कि अगर रुकबे के लिहाज से और सियासी नवीयत के लिहाज से, किसी भी नवीयत से देखें तो डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिशात हैं, हालांकि अभी यह ड्राफ्ट है जिसमें 6 सीटें जम्मू से बढ़ सकती हैं, कश्मीर से सिर्फ 1 सीट बढ़ सकती है। गुलाम नबी आजाद ने जबरदस्त एतराज का इजहार किया। PDP सुप्रीमो और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने डिलिमिटेशन कमीशन के आज के ड्राफ्ट आने पर जबरदस्त ताज्जुब और हैरानगी का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, हदबंदी कमीशन के बारे में मेरे खदशात पहले से थे और मैं गलत साबित नहीं हुई कि मर्दमशुमारी को नजरअंदाज करके एक खिते को 6 और दूसरे खिते को 1 सीट बढ़ाने की तजवीज एक दूसरे खिते को लड़ाने के मतरादिफ होगा। महबूबा मुफ्ती ने आज की डिलिमिटेशन कमीशन में मुमकिना तौर पर जो ड्राफ्ट या सिफारिशात आ रही हैं उस पर जबरदस्त एतराज का इजहार किया। कहा कि 6 सीटें और 1 सीटें, जम्मू सूबे से 6 सीटें, कश्मीर सूबे से 1 सीट, यह बढ़ाना तो सरासर ज्यादती है। दरअसल उन्होंने बीजेपी सरकार पर इल्जाम आयद किया कि ये एक दूसरे को लड़ाने के मतरादिफ होगा, यानी जम्मू वर्सेस कश्मीर। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट दिखाइएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी अपना ट्वीट अभी जारी करते हुए कहा, उमर लिखते हैं, जम्मू कश्मीर की हदबंदी कमीशन की सिफारिशात का मसवदा नाकाबिल कबूल है। 2011 के सेंसस या मर्दमशुमारी के एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू को 6 और कश्मीर को 1 निशस्त बढ़ाने की तजवीज नाकाबिल कबूल है और यह 2011 की मर्दमशुमारी के डेटा के बरक्स होगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का ट्वीट आप तक पहुंच रहा है। सज्जाद गनी लोन का ट्वीट आप तक पहुंच रहा है, जिसमें सज्जाद गनी लोन ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए लिखते हैं, हदबंदी कमीशन की सिफारिशात बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं, वो तासुब के शिकार हैं। जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा यानी शॉक होगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन साबिक वजीर सज्जाद गनी लोन का सख्त लहजे में एतराफ, हदबंदी कमीशन की सिफारिशात बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, वो तासुब के शिकार हुए हैं। जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा शॉक हो सकता है।
इधर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला और साबिक वजीर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद से ज्यादा नहीं मिला। उन्होंने एतराफ किया कि जम्मू कश्मीर में ये जो आज हदबंदी कमीशन की सिफारिशाती रिपोर्ट मंजर आम पे लाई 2011 की मर्दमशुमारी पे मबनी नहीं है। इस ड्राफ्ट को नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के गहरे मरासिम से ताबीर किया। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमूलियत ने इसको आपसी समझौते से तय पाया। बीजेपी और एनसी एक खित्ते को दूसरे खित्ते के लड़ाने के मतरादिफ है, लेकिन हमें नाउमीदी नहीं है, इंसाफ एक न एक दिन जरूर मिलेगा। अभी ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है, वी रिजेक्ट दिस। ये पहले ही हम बिल्कुल इसको मुस्तरद करते हैं और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीन करेगी और हक और इंसाफ पे मबनी कमीशन की सिफारिशात जो फाइनल सिफारिशात होंगी होनी चाहिए। नंबर एक, इसके साथ ही मैं आज बड़ा एक आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं, कहते हैं ना वो बिल्ली बैग से बाहर है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। आज पता लगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के कितने गहरे मरासिम हैं। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड किया कि हम जाएंगे, पहले कहते थे कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन में जाएंगे तो वो हो गया कि एक्सेप्टेंस ऑफ 5 अगस्त 2019 के फैसले की। आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि शायद कहीं पे इन लोगों को आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। मैं जितनी मज़ामत हो सकती है इन दोनों पार्टियों की करता हूं कि इन्होंने लीगल मैंडेट का कोई ख्याल नहीं रखा और जिस तरह से ये एक खित्ते को दूसरे खित्ते से लड़ाना चाहते हैं, ये भी बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील करता हूं कि अपने इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक जम्मू कश्मीर के वजीर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को अपने पार्टी ऑफिस वाक़िया श्रीनगर में मुख्तसर बातचीत के दौरान कहा, महबूबा मुफ्ती ने जो खदशात जाहिर किए थे उनमें 1 सेकंड भी हमने कम नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जो खदशात हमें पहले से थे वो आज अमली तौर पर जाहिर होने लगे। उन्होंने कहा कि सियासी नवियत का फैसला है, इसमें रुकबे और 2011 का सेंसस नजरअंदाज किया गया है कि जहां तक ये अगर ये सही है कि 6 सीटें जम्मू में बढ़ रही हैं, 1 सीट कश्मीर में बढ़ रही है, तो कश्मीर के लोगों के साथ ये नाइंसाफी है। और मुझे लगता है कि यही इनका मकसद था, वो मकसद ये पूरा करना चाहते हैं। तो एसटी और एससी का जहां तक ताल्लुक है, उनको भी हक है, उनको भी मिलनी चाहिए सीटें, लेकिन ज्यादा सीटें जम्मू को बढ़ना ये नाइंसाफी है कश्मीर के साथ। कि अभी तो डिलिमिटेशन का ये तो प्रपोजल है, अभी तो हम नहीं कह सकते, ये फाइनल डिसीजन उनका नहीं है। जब फाइनल डिसीजन उनका आएगा तो तब हम सोचेंगे। नाज़रीन, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अब जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद डॉक्टर नासिर नवाब ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले डिलिमिटेशन कमीशन में न जाने के दिन क्या कुछ सोचा था, आज इसमें शमूलियत इख्तियार करने के बाद क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आपके सामने है। डॉक्टर नवाब ने कहा, डिलिमिटेशन का वेलकम करते हैं पार्टी की तरफ से, लेकिन हमारी बात यह है, अगर डिलिमिटेशन किसी मजहब की वजह से हो रही, अगर डिलिमिटेशन किसी एरिया को फैसिलिटेट करने की वजह से होती है तो गलत है। अगर डिलिमिटेशन ऐसी होती है कि जिसकी वजह से आवाम को फायदा मिले तो वो डिलिमिटेशन अच्छी है, लेकिन वो डिलिमिटेशन साफ और शफाफ होनी चाहिए। और उसमें जो आवाम है यहाँ की, यहाँ पे इस वक्त कोई MLAs नहीं है, लेकिन आवाम के रिप्रेजेंटेटिव ने DDCs हैं, यहाँ पे सरपंच है, उनको इन्वॉल्व किया जाए कि हाँ इसमें क्या फायदा, और हमको बताया जाए, ऑन रिकॉर्ड पेपर पे लाया जाए, हाँ ये डिलिमिटेशन से ये फायदा। और नाज़रीन, अब इस मौजू की आखिरी अहम बाइट आप तक प्ले करेंगे। यह है जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधान या सदर, जिन्होंने आज इस डिलिमिटेशन कमीशन की पहली मीटिंग यानी दूसरी मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसमें शमूलियत पर उन्होंने इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि आज का यह ड्राफ्ट बनने के बाद वो दूरियां खत्म हो गई जो मुख्तलिफ जातों के साथ, कबीलों के साथ की गई, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की कम वक्त में इस तरह से ड्राफ्ट तैयार करने पर उनकी काफी तारीफ की है।
के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार एक आवाज उठती रही है कि रीजनल इम्बैलेंस यहाँ रहा, और वो सभी बातें हम सब ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने तथ्यों आधारित वो सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे थे। और आज ये रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और चुनाव आयोग के सहयोग से तैयार की है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक रीजनल इम्बैलेंस जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले था, यकीनन डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग ने उसको समाप्त किया होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 70 वर्षों में हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि जम्मू संभाग को उसका हक नहीं दिया गया, और ये सभी बातें हमने डिलिमिटेशन कमीशन और चुनाव आयोग के सामने रखी थी, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों ने भी ये सारी बातें जो हैं वो चुनाव आयोग। आप देख रहे हैं श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त खबरों पे अपना पसंदीदा प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिनमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आप इस नशरियात को बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अब मामला 6-1 का हो गया, यानी जम्मू को डिलिमिटेशन कमीशन के इस ड्राफ्ट में मजीद 6 सीटें मिली है और कश्मीर को 1 सीट मिली है। कश्मीर का कौन सा खिता होगा जहां यह सीट होगी? आबादी के तनासुब से शहर श्रीनगर का बटमालू और शुमाली कश्मीर का बहुत सारे अजला है जहां पर आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि 6 सीटें जम्मू प्रोविंस में बढ़ने की सिफारिश रखी है डिलिमिटेशन कमीशन ने मेंबरान के सामने। हालांकि एक ड्राफ्ट है, पब्लिक डोमेन में जाएगा, मेंबर्स इस पर राय देंगे और 31 दिसंबर 2021 यानी साल के आखिरी दिन तक डिलिमिटेशन कमीशन में जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान है, एग्जीक्यूटिव मेंबरान है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, वाहिद जम्मू कश्मीर से जो भारतीय जनता पार्टी और दीगर पार्टियों के साथ मेंबरान की हैसियत से इस डिलिमिटेशन कमीशन में हिस्सा लिया है। अब 31 तक वो एतराजात जमा कर सकते हैं और इन तजावीज़ को वो किस तरह से देखते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ज़राए के हवाले से खबर है कि कुछ पार्टियां जम्मू कश्मीर से ये राय रख रही हैं कि 4-3 के तनासुब से चलिएगा जनाब, जम्मू अगर 4 बढ़ा रहे हैं तो कश्मीर को 3 दीजिएगा, मामला खत्म हो जाएगा। एसटी और एससी यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जुमरों में जो कबीले आते हैं, जो तबकात आते हैं, उनको भी मॉडिफाई किया जाए, उस ऑर्डर को भी मॉडिफाई किया जाए। और कुछ मांगे भी हैं जिनको लेकर अगला हफ्ता सियासी तौर बड़ा बेदार होगा और इस सियासत के इस परेशानी में रीजनल पार्टीज पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। डिलिमिटेशन कमीशन की इस सिफारिश को चौंका देने वाली सिफारिशात मानने के बाद आगे का लाहे अमल रीजनल पार्टीज कल जम्मू में बैठेंगी, जहां पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन 21 दिसंबर को इंतहाई अहम इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इजलास में शरीक होंगे, इसकी क़यादत करेंगे। महबूबा मुफ्ती खुद भी जम्मू में इस वक्त मौजूद हैं और इसके अलावा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस CPIM और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट समेत दीगर पार्टियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। तमाम नजरें कल के PAGD के इजलास में है। हो सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन भी PAGD के हवाले से मुश्तरका लाए अमल या प्रोग्राम आगे दिया जा सकता है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं एक और मौजू की तरफ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में बिजली गुल हो चुकी है। अब की बार ये कोई फॉल्ट नहीं, अब की बार रिसीविंग स्टेशन की सलाहियत को बढ़ाने के बावजूद और दीगर स्टेशनों को ट्रांसफार्मर बेहतर करने के बावजूद बिजली गुल क्यों है? जरा तस्वीरें चलाइएगा। बिमना में एहतजाजी मुजाहिरीन अतराफ अकलाफ से जो आए हुए हैं, उन्होंने आज श्रीनगर के बिमना में आकर एहतजाज किया। इतलात के मुताबिक आज एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि बिजली की मुमकिना निजीकारी के खिलाफ वो बच्चों समेत अब सड़कों का रुख करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी LG इंतजामिया पर होगी। एहतजाजी मुलाजमीन के मुताबिक आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली की मांगों को लेकर 2019 तक फाइलें पहुंच चुकी थी और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल का तबादला हुआ और उसके बाद साथ ही साथ जो मामला उठाए जा रहे हैं जिनमें प्राइवेटाइज करना महकमा बिजली को, जिससे मुलाजमीन का जो तनासुब है वो 50-50 के बराबर होगा। अगर इंडियन ग्रिड्स के हवाले अब बिजली की निजीकारी की जाए तो जम्मू कश्मीर के वासियों को सिर्फ 50% मुलाजमत मिल सकती है। आपको मिसाल के तौर पर बता दूं कि खता चनाब में इस वक्त जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर सरकार और नॉर्दर्न ग्रिड बना रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की जो इस वक्त परसेंटेज है वो 8% के आसपास है। बाकी 92% परसेंटेज जो मुलाजमीन लगे हुए हैं वो बैरून रियासत से हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि
हमें शौक नहीं है ठिठुरती सर्दियों में हम इस तरह से खुले आसमान तले सर्दियों में बैठें, लेकिन हमारी मांगें जेन्युइन है। सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना होगा। और कुछ दिनों से जो गर्म अफवाह गर्दिश कर रही है कि एक और ऑर्डर सरकार ने निकाला, पहले आर्मी के जो टेक्निकल स्टाफ है, इंजीनियरिंग ग्रुप है, वो अब रिसीविंग स्टेशन और ग्रिड स्टेशन में दाखिल होने के बाद बिजली चालू रखने में अपना रोल अदा करें। अब आज एलटीसी इंतजामिया का एक और ऑर्डर आया जिसमें ITI इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे जेर तरबियत हैं उन्हें अब रिसीविंग स्टेशन और ग्रिड स्टेशन की तरफ रवाना किया जा सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इन रिसीविंग स्टेशन में कुछ होता है तो इन बच्चों के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन है? एहतजाजी मुलाजमीन से बात करते हैं, उसके बाद जम्मू चलते हैं। मैं मुलाजमों की बात करूंगा। अगर जॉइंट वेंचर हो गया, हमको प्लेट पे रखना है अपना 50% पावर ग्रिड ऑफ इंडिया को, यानी कि हमारी 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी उनके पास, हमारे 50% एसेट्स भी उनके पास। उसके अलावा जो हमारी दूसरी मांग थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट मांग थी, कि हम भी कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं लेकिन डेपुटेशन पे है, सरकारी मुलाजिम है हम, तो हमारी सैलरी बाकी डिपार्टमेंट की तरह ट्रेजरी से आए। आप ये फैसला कैसे देखते हैं कि अब आप उन रिसीविंग स्टेशंस और बाकी जगहों पे नहीं है तो आर्मी का टेक ओवर कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। आर्मी का काम कुछ और है। नाज़रीन, जाते जाते बता दूं कि जम्मू में भी कुछ मुलाजमीन अंजुमनों ने PDD के हवाले से, इस मसले के हवाले से इंतजामिया के साथ बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक कोई भी फैसला सूदमत साबित नहीं हुआ और ये कोशिशें अभी तक रायगां होती नजर आ रही है। इधर एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर रफीक अहमद रातर, सईद गुलाम रसूल गिलानी, EJAC के लीडर और एजाज शहदार समेत कई एक अंजुमनों ने और कई एक सियासी जमातों ने, जिसमें PDP, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDF, CPIM, PC और इसके अलावा अपनी पार्टी के लीडरान ने भी PDD मुलाजमीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए UT इंतजामिया से PDD मुलाजमीन के मसाइल हल करने की मांग की है। और नाज़रीन, जाते जाते ये मुख्तसर खबर कि उमर रमजान और जावेद अहमद मल्ला को जम्मू कश्मीर पुलिस SOG आर्मी ने गिरफ्तार किया। इंकशाफ किया कि इंट्रोगेशन के दौरान, तहकीकात के दौरान उमर रमजान और जावेद अहमद मल्ला साकिन खिला जो जनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें जैश मोहम्मद से वाबस्ता बताया गया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ। मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे, लेकिन देश दुनिया की खबरों का सफर बेबाकी के साथ गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पे जारी रहेगा। अल्लाह हमदो नासर।